بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والمنتجبین المنتخبین ولعن اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین المقصرین فردن بعد فردن ونسلا بعد نسلا وحزبا بعد حزبا وقبیلتا بعد قبیلتا من یومنا ھذا والى یوم الدین بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد. سامعین محترم، صرف 12 سے 14 منٹ آپ کی سماعت کو مصروف رہنا، اس لیے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 12 اور 14 کے آس پاس ہی رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن گزارش یہ ہے کہ 12 سے 14 منٹ میرے ساتھ رہیے گا، ورنہ 14 سے اگلا ہنسا جو 72 ہے تو پھر آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑے گا. 12 سے 14 منٹ کی حاضری دینی ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی 3 سے 4 دن پہلے جو کائنات کا سب سے بڑا جشن کا دن گزرا، یہ عید غدیر عزیزان محترم، وہ موقع کہ جب خداوند کریم نے فائنل الٹیمیٹم دیا ہے نبی کو کہ اے میرے نبی، اگر یہ نہ پہنچایا تو باقی تمام کار رسالت بیکار ہے. دیکھیے، جب روز الست انبیاء کی ارواح سے خداوند کریم نے عہد لیا، وہ کیا عہد تھا؟ 1,23,999 انبیاء سے خداوند کریم کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو، سب کچھ تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر میرے محمد کی نبوت کا اقرار نہیں کرو گے تو تمہاری رسالتیں بیکار ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے، 1,23,999 انبیاء کو روز الست خداوند کریم کہہ رہا ہے اگر میرے محمد کی نبوت کا اقرار نہ کیا تمہاری نبوتیں ضائع ہو جائیں گی. اور غدیر کے دن خداوند کریم نبی کو کیا فرما رہا ہے؟ دیکھ نبی، اگر تو نے میرے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تیری رسالت بیکار ہے. تو اب یاد رکھنا کہ اگر 1,23,999 انبیاء محمد کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں بیکار جاتی ہیں، اور اگر وہ محمد علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس محمد کی نبوت بیکار ہو جاتی ہے. یہ عزیزان محترم، یہ اہمیت ہے غدیر کی. میں نے عرض کیا کہ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے. عیدین اگرچہ موجود ہیں، عید الفطر بھی موجود ہے، عید الاضحیٰ بھی موجود ہے، لیکن مذہبی فریضہ اپنی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مواقع پر مسلمان جو سچے دل سے مسلمان ہے نا، جو سچا نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے خوشی منانے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ عید الفطر کے موقع پر نہ عید الاضحیٰ کے موقع پر. کیوں؟ عید تاریخیں کیا ہیں؟ یکم شوال عید الفطر کا دن جب زینب علی کا 10واں منا رہی ہے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحج، یہ وہ دن ہے جب زینب مسلم بن عقیل کا سوئم منا رہی ہے. جب بنی ہاشم کے گھر میں صف ماتم بچھی ہو تو کوئی مسلمان خوشی کیسے منا سکتا ہے؟ اگر عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو صرف وہ دن کہ جب میرے مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کے سر پر ولایت کا تاج رکھا گیا، جب ولایت کا اعلان کیا گیا. یہ ہے کائنات کا سب سے بڑا خوشی کا دن. اور عزیزان محترم، یہ عجیب بات ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی، وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی اور غم ہمیشہ اکٹھے آیا کرتے ہیں، یہ قدرت کا نظام ہے. کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور کائنات کا سب سے بڑا غم، یہ دونوں موقع آگے پیچھے رکھے گئے، اوپر تلے رکھے گئے. ابھی عید غدیر منائی ہے اور اب جو تاریخیں آ رہی ہیں، 4 دن باقی ہے نا، 4 دن رہ گئے ہیں. ہم تو محرم الحرام کے آمد کے انتظار میں آسمان کی طرف نگاہ رکھتے ہیں کہ کب محرم کا چاند طلوع ہوگا اور کب ہم اپنے گھروں میں سیدہ کے لال کی صف عزا بچھا لیں گے. لیکن یہ ہم ہیں جنہیں چاند دیکھنے کی ضرورت ہے. اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں محرم کی آمد کی خبر چاند دیکھ کے نہیں ہوا کرتی تھی، بس جعفر صادق کے گھر سے گریے کی صدا بلند ہوتی تھی، ہمیں علم ہو چلتا تھا کہ محرم شروع ہو گیا ہے. ہاں عزادارو، وہ دن آ گئے ہیں، محرم کی آمد ہے. زہرا کا بھرا گھر اجڑنے میں صرف چند روز باقی رہ گئے ہیں. اسلام کے زخمی بدن کو خون درکار ہے نا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود،
कितनी सितम ज़रीफ़ी है ये वक्त की। माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले। ये वो 72 हैं अजीज़ान मोहतरम कि जिनके लिए मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था ना कि जैसे असहाबे बावफा मेरे हिस्से में आए, ना मेरे नाना को मिले ना मेरे बाबा के हिस्से में आए। और मौला ऐसा क्यों ना फरमाते, मेरा इमाम ऐसा क्यों ना कहता। तारीख ने ये मंजर भी तो सिर्फ करबला में देखा है ना कि इमाम नमाज अदा कर रहे हैं और इमाम के गुलाम क्या कर रहे हैं, इमाम के आगे खड़े होकर इमाम के पर बरसने वाले तीर अपने सीनों पर खा रहे हैं। ये तो था ना हुस्ने अमल इमामों के, इमाम के गुलामों का। और अब इस तर्जे अमल, इस हुस्ने अमल के जवाब में इमाम का तर्जे अमल क्या रहा। जब हुर अपने जवान बेटे का लाशा उठाने खैमे की मक्तल की जानिब जाने लगते हैं, इमाम हुर को रोक लेते हैं। ए हुर, क्या तुझे मेरे नाना की शरीयत का इल्म नहीं है? जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप नहीं उठाया करते। अज़ादारों, ये वही हुसैन है ना। हुर को तो अपने जवान बेटे का लाशा ना उठाने दिया, लेकिन जब अकबर के सीने में बर्छी लगी तो हुसैन ने अपनी बूढ़ी कमर के साथ, अपने बुजुर्ग हाथों के साथ अकबर का लाशा उठाया है। जब कासिम के लाशे के टुकड़े हो गए थे, करबला की गर्म रेत से लाशा कासिम के टुकड़ों को हुसैन ने अपने हाथों से छाना था। और अज़ादारों, ये जो शहादतें हैं ना, इन तमाम शहादतों में 2 शहादतें ऐसी हैं कि जिसने हुसैन की तो जैसे कमर ही तोड़ के। पहली शहादत उस जवान की कि जब बादे रसूल किसी को बादे रसूल किसी को ज़ियारत रसूल करना होती थी तो वो अली अकबर के चेहरे की ज़ियारत करता था। और दूसरी शहादत वो उस जवान की कि जिसे फातिमा कुलाबिया ने मांगा ही सिर्फ करबला में हुसैन की नुसरत के लिए था। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जब शहादतें होना शुरू हुई है ना, जनाबे गाजी अब्बास को मौला हुसैन इजाजत नहीं देते थे करबला में जाने की। बिलाखिर मैं सिर्फ मुख्तसर कर रहा हूँ, अलम कुशाई का मौका था, चंद जुमले मसाइब के इस हवाले से बयान करता चलूं और फातिमा कुलाबिया से जनाबे सैयदा से दुआ ले लूं। मेरा ईमान है कि मस्तूरात के साथ जनाबे सैयदा भी सफ़े अज़ा पर मौजूद, हुसैन भी सफ़े अज़ा पर मौजूद, और तमाम ये हस्तियां उस वो तस्करा सुनने आई हैं कि जिस हस्ती का आलम कुशाई भी की गई है। हाँ आज़ादारों, बिल आखिर जनाबे सकीना की सिफारिश पाकर जनाबे गाजी अब्बास को इजाजत मिली है मक्तल में जाने की। लेकिन किस अंदाज में? गाजी अब्बास से फरमा दिया हुसैन ने, अब्बास तुम जंग करने नहीं जा रहे हो, खुद भी उतरवा दिया, तलवार भी रखवा ली, ढाल भी रखवा ली, बस गर्दन में मश्क सकीना है। सकाए सकीना मक्तल की जानिब जाता है, लेकिन उससे पहले किससे इजाजत लेने आया है? उस माँ जैसी बहन से कि जिसने सारी जिंदगी पाला है। ये वो बहन है ना, ये वो भाई है। कमसनी का जमाना था, ज़ैनब के हाथ में अब्बास का हाथ है, दोनों सहन में चल रहे हैं। मौला अली पूछते हैं, ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही हो? मेरी बीबी ने क्या जवाब दिया है? नहीं बाबा, अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ। अजरकुमुल्लाह, अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ। यही मौका था ना कि जब जनाब ज़ैनब ने फरमाया था, अब्बास जब वक्त शहादत आया था बाबा ने मुझे बताया था कि एक वक्त आएगा मेरे हाथों में रस्सियां बंधेंगी, मुझे असीर करके बाजारों में ले जाया जाएगा। मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसकी तरफ आंख बुलंद करके कौन देख सकता है। आज मैं सुबह से देख रही हूँ, जो भी मक्तल में गया है वापस नहीं आया है। अब तुम भी जा रहे हो, ज़ैनब को यकीन हो चला है अब चादरें भी छिनेंगी, अब हाथों में रस्सियां भी बंधेंगी, अब असीरी भी होगी, अब सकीना को तमाचे भी लगेंगे। आज़ादारों, बस ये मंजर है। इधर अलम लेकर गाजी अब्बास मक्तल की जानिब रवाना हुए हैं, उधर से एक 4 साल की बच्ची है, खैमों में बच्चों को इकट्ठा किया है। मैंने जमानत दी थी ना, वो देखो मेरे चचा नहरे फुरात की जानिब जा रहे हैं, मेरे चचा जा रहे हैं, पानी लेकर आएंगे। सूखे लब हैं, खुश्क पूजे हैं, तमाम बच्चों को सकीना ने इकट्ठा किया है, नजरे आलम के पंजे की जानिब हैं। जैसे जैसे आलम आगे बढ़ता है, सकीना बच्चों को तसल्ली दे रही है। वो देखो मेरे चचा का आलम जा रहा है, वो देखो मेरे चचा नहर के जानिब पहुंच गए हैं, वो देखो अब मेरे चचा नहर से मशके सकी मेरी मश्क को भर रहे हैं, वो देखो अब आलम का पंजा वापस लौटा, पानी खैमों तक आने लगा है। ऐसे में एक वक्त आया, अलम का जो पंजा डगमगाया है, सकीना ने कूजा छोड़ा, या इलाही मेरे चचा की खैर, या
की खैर। बस अज़ादारो वो पंजा डगमगा गया है, उधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहरे फुरात की जानिब दौड़े हैं, लेकिन गाजी ने एक अजीब वादा ले लिया, मौला मेरे लाशे को खैमों में ले जाइएगा। मैं अपनी भतीजी से किया वादा पूरा न कर सका। बस अज़ादारो वापस खैमे में आलम तो आया, लेकिन साथ हुसैन का ये कौल भी आया है अलम, और अलमदार ना आया। ये वो शहादत थी कि इसके बाद कोई बाकी ना बचा, और हुसैन इतना गरीब हो गया कि जब हुसैन ने मक्तल में जाना था तो दुलदुल पर सवार कराने के लिए ज़ैनब को आगे आना पड़ा। मैं नहीं समझ सकता कि मसाइब की इंतहा कहां पर गुजरी। क्या हुसैन का कटा सर मसाइब की इंतहा ठहरा, या ज़ैनब का खुला सर मसाइब? लानतुल्लाहि अला कौमिल काज़िबीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पालने वाले हमारी इस कलील इबादत को बारगाह सैयदा में मंजूर फरमाइए। पालने वाले सफ़े अज़ा पर जो भीगी आंखों से हाजात लेकर बैठे हैं, जो सबके दिलों के भेद जानता है, तमाम हाजात का रवा। पालने वाले उजरी हुई आगोश रुबाब का वास्ता देकर अर्ज करते हैं, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद, जो साहिबाने औलाद हैं उनकी औलाद को नेक और सालिह। पालने वाले दरे मदीनतुल इल्म की अजमत का वास्ता है, जो तलबा इम्तहानात दे रहे हैं या देने वाले हैं, उन्हें उनके इम्तहानात में कामयाबी। पालने वाले मुल्क अज़ीम को खुशहाली और तरक्की अता फरमा। तमाम शियाने हैदर कर्रार दुनिया के जिस कोने में उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तमाम मकामात मुक़द्दसा ज़ियारात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। पालने वाले विलायत अली, ज़िक्र अली और तफ़ज़ील अली के जो मुनकिर हैं, अगर वो हिदायत के काबिल हैं तो किसी तरह उन्हें हिदायत दे दे, अगर हिदायत के काबिल नहीं हैं तो उनका हश्र और उनका शुमार दुश्मनाने अहले बैत के साथ। कई दोस्तों ने कुछ दुआएं ज़िम्मे लगा रखी हैं, पालने वाले तो दिलों के भेद जानता है, तमाम दुआओं को बहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद पर फरमा। तमाम दुआओं की एक दुआ इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें आपके आवान व अंसार में शामिल तौफीक इनायत फरमा। शाम के हालात पालने वाले उस बीबी का रोज़ा है वहाँ पर कि जिसने मसाइब की वो इंतहा देखी, करबला में चादर छिन गई, गोद उजड़ गई, लेकिन ये वो बीबी है कि करबला से लेकर शाम, शाम से लेकर वापस करबला और फिर मदीने तक अपने बच्चों को नहीं। जब भी ज़ैनब ने आंसू बहाए तो हुसैन के बच्चों पर आंसू बहाए, भाई पर आंसू बहाए, लेकिन उन्होंने मोहम्मद को नहीं रोकी। और जब मदीने पहुंचकर वो आंगन देखा ना कि जहां उन्होंने मोहम्मद खेला करते थे, तो एक मर्तबा मांगता जाती है, जमीन पर बैठकर ज़ैनब ने एक ही सलाह दी है, हाय मेरे बच्चे। पालने वाले उन तमाम मसाइब का वास्ता शाम के हालात बेहतर फरमा। तमाम ज़बारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, तमाम अज़ादारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें आपके आवान व अंसार में शामिल होने की तौफीक।